Hello students, today we are going to study IUPAC nomenclature in aromatic hydrocarbon. In the previous videos we have studied IUPAC nomenclature in variety of organic compound. In this video we are discussing nomenclature in aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbon is of two type. One is benzenoid aromatic hydrocarbon while other is non-benzenoid aromatic hydrocarbon. In benzenoid aromatic hydrocarbon, either there is one single benzene ring is present or more than one benzene rings are present in the form of fused or isolated states. Whereas in non-benzenoid aromatic hydrocarbon, there is no benzene ring is present. So we will discussing the IUPAC nomenclature in aromatic hydrocarbon, that is benzenoid aromatic hydrocarbon. So let's start. Before starting the IUPAC nomenclature, first of all we have to understand how many parts are there in aromatic hydrocarbon. There are two parts in aromatic hydrocarbon. First is nucleus. Most simplest aromatic hydrocarbon is benzene ring. In benzene ring there are 6 carbon atoms which are joined together by the single bond and alternate 3 double bonds to form regular hexagon. देख लेते हैं कि जो बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन था वो 3 तरीके से दिया गया. कैसे दिया गया? सबसे पहला है ओपन सिस्टम. In open system, all the atoms are represented. Both carbon and hydrogen will be represented. ठीक है? ठीक है? How many double bonds are there? 3 double bonds which are present at alternate position. Second was closed system. This is closed system. ठीक है? These double bonds are movable. ठीक है, इनकी जो पोजीशन थी ये चेंज होती रहती थी, तो इसको आप दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इज कीप चेंजिंग. ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर थे. नेक्स्ट आप कैसे दे सकते हैं? In this benzene ring there is a circle represented. This circle represent that these pi electrons are delocalized. It means they are movable. ठीक है, movable को हमने यहाँ पे represent किया, उसी को हम ऐसे भी represent कर सकते हैं. This shows that these pi electrons are keep moving. ठीक है, तो ये जो सिस्टम था दिस वॉज कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ठीक है, तो अब ये देख लीजिए ये हो गया. ये 3 वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन रिंग को. दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द एरोमेटिक रिंग. सो व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू दिस न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कहेंगे. ठीक है, वहीं पे सेकेंड पार्ट आपका कौन सा हो जाता है? साइड चेन. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, when some alkyl system, some side branch that is alkyl system is attached to this benzene ring, so this will be represented as a side chain. ठीक है, तो there are two parts in aromatic hydrocarbon. One is this nucleus part, that is benzene ring, and second is this side chain part which is represented by alkyl system or aliphatic system. It should have at least minimum 1 carbon. ठीक है, तो अगर कोई भी functional group या substituent is attached to this part, then this will be referred as side chain substitution. ठीक है, if some substituent or functional group is attached to this nucleus part, then it will be represented as nuclear substitution. So according to the substitution of functional group or substituent on alkyl chain or aromatic chain will decide which type of substitution it will be. ठीक है, this will affect the chemical and physical property of the organic compound. Both side chain substitution and nuclear substitution show different chemical properties. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि IUPAC nomenclature और common name system से इसमें कैसे नेमिंग की गई. In nuclear substitution,
अगर मान लीजिए आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी व्हेन द फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इज डायरेक्टली अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कैसे नेमिंग हो जाएगी, एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज एल्कोहलिक ग्रुप, दिस इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, ठीक है, तो दिस विल बी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो अब यहाँ पे जो नेमिंग होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में, फिनॉल, ठीक है। तो अब जब न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो आपका यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस बेंजीन रिंग, ठीक है, दिस बेंजीन रिंग का क्या होगा, वो डेरिवेटिव होगा, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक CH3 लग गया, ठीक है, तो अब जरा देखिए, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल बी this OH will be regarded as full functional group. It is given more preference in comparison to alkyl system, so the numbering will be done from this position 1 2, ठीक है। तो 1 2 position when there is locant decided by Arabic numerals, that is 1 2 3 4, ठीक है, तो दिस विल बी IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी जब लोकेंट को, पोजीशन को 1 2 3 4 से डिसाइड करेंगे तो दैट विल बी IUPAC नॉमेनक्लेचर। बट इफ इट इज डिसाइडेड बाय ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है, ऑर्थो को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O, सिंगल O, M, पैरा को P, ठीक है। व्हेन इट इज नेम्ड बाय ऑर्थो, मेटा, पैरा, यानी पोजीशंस आर डिसाइडेड बाय ऑर्थो, मेटा, पैरा, इट विल कम अंडर कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे नेमिंग कैसे हो जाएगी, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहलिक, देन दिस विल बी द साइड ब्रांच, तो नेमिंग विल बी 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हम इसको कॉमन नेम सिस्टम से नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 पोजीशन विल ऑलवेज बी रिफर्ड एज ऑर्थो, कौन सी पोजीशन, 1 2, 1 3 पोजीशन, दिस विल बी द थर्ड कार्बन, ठीक है, तो 1 3 पोजीशन इज रिफर्ड एज मेटा, दिस इज 4th, 1 4th पोजीशन इज रिफर्ड एज पैरा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉमन नेम फॉर दिस, क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो मिथाइल, इसका मतलब क्या हो गया, इससे, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से सेकेंड पोजीशन पे, यानी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा है, ठीक है, एंड दिस सिस्टम विल बी रिफर्ड एज फिनॉल, ठीक है, तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ठीक है। सिमिलरली इफ दिस एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, it will be represented as meta methyl phenol. IUPAC nomenclature इसका क्या हो जाएगा, IUPAC nomenclature will be 3 methyl phenol, ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली विद पैरा पोजीशन, इफ द एल्काइल सिस्टम इज प्रेजेंट एट 4th कार्बन, दिस विल बी रिफर्ड एज पैरा मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन में कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC दिया गया। दूसरा है आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड एट द साइड चेन ऑफ द एलिफैटिक पार्ट ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, this part is referred as side chain and this portion is referred as nucleus, ठीक है। when substituent is attached to the side chain part, then that will be named as side chain substitution, and when the functional group attacks at the nucleus part, this will be nuclear substitution, ठीक है। in this case we are studying the side chain substitution। जैसे कि example देख लीजिए, in this the one functional group, that is alcoholic functional group, is attached to the side chain part,
So preference will be given to this aliphatic part because the functional group is attached to this part. So the derivative which will be obtained will be the derivative of aliphatic part, not of this benzene ring. ठीक है, तो नेमिंग क्या हो जाएगी, नेमिंग कैसे करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर से, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2, देन दिस विल बी ट्रीटेड एज साइड ब्रांच, क्या हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल। कॉमन नेम सिस्टम में कैसे देते हैं, कॉमन नेम सिस्टम में न्यूमरल्स नहीं यूज़ करते, 1 2 3 नहीं यूज़ करते। इन कॉमन नेम सिस्टम अल्फ़ा बीटा गामा आर यूज्ड। ठीक है, तो अल्फ़ा कार्बन कौन सा हो जाएगा, जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है OH से, तो ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। सो द लोकेंट विल बी डिसाइडेड हेयर फॉर द बेंजीन रिंग इज बीटा, तो क्या हो जाएगा बीटा फिनाइल इथाइल alcohol. This is the common name. So first nomenclature will be started with aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are also known as arenes. Why arenes? Arenes having both the parts, that is aliphatic part and aromatic part. The compound which will be obtained will be the derivative of benzene ring because the alkyl chain which is present is not that much unsaturated. So preference will be given to more unsaturation, that is benzene ring. In benzene ring there are 3 double bonds are present. So preference will be given to benzene ring. So derivative of benzene ring will be obtained. ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा। First benzene, second this is toluene. The common name for this compound is toluene. ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम मिथाइल benzene. Next, if 2 CH3 are present, this alkyl system are present in adjacent carbon, that is 1 2 position. ठीक है, this is 1 2 position. According to IUPAC name, the name will be 1,2 dimethyl benzene. ठीक है, common name will be ortho dimethyl benzene. ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और इसी का जो दूसरा नेम है, इसी को हम क्या कहते हैं ऑर्थोजाइलीन। ठीक है, ये कॉमन नेम है इसका। ठीक है, दिस कॉमन नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस कॉमन नेम बिकॉज मैनी कॉमन नेम्स आर एक्सेप्टेड बाय IUPAC नॉमेनक्लेचर, सो मैनी टाइम्स द क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय यूजिंग कॉमन नेम सिस्टम। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस इज 1 3 पोजिशन 1 2 3, तो नेम क्या हो जाएगा इसका 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका मेटाजाइलीन। नेक्स्ट, दिस इज पैरा पोजिशन। ठीक है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा पैराजाइलीन। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, इफ़ देयर इज़ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस एल्काइल सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता है इस एल्काइल सिस्टम को हम कैसे नेम देते हैं इथेनाइल, तो ये क्या हो जाएगा एथनाइल बेंजीन। ठीक है, और देख लीजिए, if triple bond is present, that is CCH, this CCH is named as ethinyl, तो ये क्या हो जाएगा ethinyl benzene. These both are IUPAC name. Common name इसका क्या है styrene. ठीक है, इसका common name देख लीजिए phenyl acetylene. This part is referred as acetylene, this part is named as phenyl. Next nomenclature will be done in aryl groups. Aryl groups are just similar like the alkyl groups. In this also one hydrogen atom is replaced to form bond with either some substituent or functional group or with the word root. तो देख लेते हैं कि कैसे होगा यहाँ पे। ठीक है, example C6H5।
ठीक है। जब आपका एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से रिमूव होके या तो वो किसी वर्ड रूट से अटैच हो जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नेम्ड एज फिनाइल। ठीक है, तो ये फिनाइल, ये अब बेंजीन नहीं हो गया, ये क्या हो गया, फिनाइल हो गया। नेक्स्ट, this whole portion, this carbon is having one bond with the substituent while the two hydrogens are left. This whole portion is named as, in common name, benzyl. ठीक है। next, if two hydrogens are removed, ठीक है, then two substituent will attach, this will name as benzyl in common name system. next, if all the hydrogens are removed from the carbon तो ये क्या हो जाएगा, this will be named as benzo। ठीक है, hydrogen is removed from the benzene ring, not from the side chain, then this is known as orthotoluene। ठीक है, इट इज सिमिलर टू टोलुइन। ठीक है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट टोलुइन। ठीक है, एंड द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, सो इट इज नेम्ड एज ऑर्थोटोलाइल। नेक्स्ट IUPAC nomenclature will be in halogen derivative. Example first, halogen is directly attached to the benzene ring, this is nuclear substitution, name will be chlorobenzene। ठीक है, ये हो गया आपका, दिस इज IUPAC नेम सिस्टम। नेक्स्ट, इफ टू हेलोजेंस आर अटैच्ड, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, 1,2 पोजीशन, तो कॉमन नेम में कैसे नेम हो जाएगा, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, सो दिस विल बी द कॉमन नेम, वेयर एज IUPAC नेम विल बी 1,2 डाई chlorobenzene। next, if there is some alkyl group present, this is methyl। ठीक है, this whole portion is named as toluene, we have studied earlier। ठीक है, this is arene part। ठीक है, this is referred as toluene। Preference will be given to methyl portion। ठीक है, so the numbering will be done from this position। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, पोजीशन देख लीजिए, 3 क्लोरो, दिस इज IUPAC सिस्टम, 3 क्लोरो टोलुइन। ठीक है, कॉमन नेम सिस्टम विल बी मेटा क्लोरो टोलुइन। नेक्स्ट इज, ठीक है, इन दिस केस द सब्सटीट्यूशन इज डन ऑन एलिफैटिक पोर्शन, that is side chain, not at nuclear position। ठीक है, this is side chain substitution, so the preference will be given to this side chain। It means this, the derivative will be of this methane part, not of aromatic part। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, this whole portion in common name system is named as benzyl। ठीक है, because one hydrogen is replaced by chlorine and there are 2 hydrogen left, so this is named as benzyl chloride, this is common name। IUPAC name will be, the derivative will be of this aliphatic portion, so it means this will be the main word root। ठीक है, तो chlorine and phenyl portion will be treated as side branch, तो name will be alphabetical order, chloro phenyl methane। Next, in this case there are 2 halogen atoms are substituted on aliphatic part। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन वहाँ पे दिख रहे हैं, only 1 hydrogen is present, so this whole portion is represented as benzyl, benzyl dichloride। ठीक है, तो दिस विल बी कॉमन नेम सिस्टम, IUPAC नेम विल बी गिवन एज, दिस विल बी द वर्ड रूट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एलिफैटिक इन विच द सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन। नेक्स्ट इज, in this case there is no hydrogen atom present at carbon, so this will be named in common name system as benzo।
benzo, how many chlorines are there? 3 trichloride. IUPAC name will be, क्या हो जाएगा आपका? The word root will be of this carbon. ठीक है, so this carbon will be given more preference in comparison to benzene ring because in this case there is a substitution, so it will be named as trichlorophenoyl methane. Next IUPAC nomenclature will be in hydroxy derivative. It is of two types. One is phenols, second is aromatic alcohols. ठीक है, when there is nuclear substitution, it means when there is substituent attached directly to the benzene ring, then they are referred as phenols. When there is substitution in the side chain, then they are referred as aromatic alcohol. तो first हम किस में देखेंगे? First phenols. ठीक है, example, this is named as phenol. Next, ठीक है, in this case the preference will be given to functional group. ठीक है, because this is principal functional group while the CH3 is side substituent, so numbering will be done from this position 1 2. ठीक है, तो IUPAC nomenclature will be 2-methyl phenol. ठीक है, whereas common name is orthocresol. ठीक है, it is its common name. ठीक है, orthocresol. Next, this is 1-3 position. ठीक है, तो common name will be metacresol 1 2 3, whereas IUPAC 2-methyl phenol. This whole portion represented as phenol. ठीक है, next देख लीजिए. ठीक है, दिस इज 1/4 पोजिशन 1 2 3 4. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज इन कॉमन नेम सिस्टम पैरा क्रिसॉल क्रिसॉल. ठीक है, वहीं पे IUPAC नेम विल बी 4-methyl phenol. ठीक है, नेक्स्ट, in this 2 OH groups are attached to the benzene ring. Common name will be catechol. Catechol. ठीक है, IUPAC name, this is 1 2 position, तो benzene 1,2 diol. Common name will be catechol. This is IUPAC name, benzene 1,2 diol. Next, meta position 1/3 position. ठीक है, so the IUPAC name will be benzene 1,3 diol, whereas the common name given as resorcinol. ठीक है, next, one-fourth position 1 2 3 4. 1/4 position, तो IUPAC name will be given as benzene 1,4 diol, whereas the common name system is hydroquinone or quinol. 3 OH group present in adjacent carbon. ठीक है, this is named as common name system pyragalol. ठीक है, this is common name for this aromatic compound, whereas IUPAC name will be benzene 1 2 3 1 2 3 triol. Next, OH OH and 1 OH at 4th position. This is named as quinone. This will be its common name system. IUPAC name will be 1 benzene 1,2,4 triol. Next is aromatic alcohol. In aromatic alcohol there is a substitution in the aliphatic system, that is side chain. तो देख लेते हैं यहाँ पे.
ठीक है, तो IUPAC नेम विल बी द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस एलिफैटिक पार्ट, सो दिस कंपाउंड विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस एलिफैटिक पार्ट, दैट इज मीथेन. ठीक है, वाई नॉट ऑफ दिस बेंजीन पार्ट, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन मोर प्रेफरेंस. सो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसी का डेरिवेटिव बनेगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी इट मीन्स दिस विल बी साइड ब्रांच. तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिनाइल मिथेनॉल. ठीक है, दिस इज IUPAC नेम. कॉमन नेम देख लीजिए, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज बेंजाइल, बेंजाइल alcohol. Next is ठीक है, in this case also the preference will be given to this portion, aliphatic portion, because the functional group alcohol is attached to this aliphatic portion, so it means this will be treated as side branch. ठीक है, तो IUPAC nomenclature में locant कैसे decide होता है, 1 2, तो 2 phenyl ethanol. Whereas in the common name system, locant is decided by alpha, beta, gamma. The functional group is attached to that first carbon is represented as alpha. Next beta. तो phenyl is attached to beta carbon. तो क्या हो जाएगा, beta phenyl ethanol. Next IUPAC nomenclature will be in ethers. First OCH3. So IUPAC name will be given as, this is referred as methoxy. ठीक है, तो methoxy benzene. ठीक है, whereas common name is methyl phenyl ether. एक और कॉमन नेम इसका होता है, इट इज नोन एज एनिसोल, एनिसोल. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है, दिस इज रिफर्ड एज इथॉक्सी. तो IUPAC नेम विल बी इथॉक्सी बेंजीन. ठीक है, वेयर एज इट्स कॉमन नेम विल बी फेनिटोल, फेनिटोल. ठीक है, दूसरा कॉमन नेम इसका क्या है, इथाइल फिनाइल ईथर. नेक्स्ट in this case there are 2 benzene ring which are attached to this oxygen. ठीक है, तो देख लीजिए, IUPAC name will be phenoxy. ठीक है, this part will be named as phenoxy benzene, this part. ठीक है, IUPAC nomenclature ये हो गया. कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल ईथर. नेक्स्ट IUPAC nomenclature in aldehydes. एग्जाम्पल, this is benzaldehyde, dehyde. ठीक है, benzaldehyde when this carbon is attached with the benzene ring. ठीक है, when this carbon attached with the benzene ring named together, it is named as benzyl. Why benzyl? Because only one hydrogen is attached. When there is one hydrogen with the carbon, then it will be named as benzyl. When 2 hydrogen, benzyl. When no hydrogen, benzo. ठीक है, तो this will be benzaldehyde. दूसरा नेम इसका क्या हो जाएगा, benzene carbaldehyde. Its common name is salicylaldehyde, salicylaldehyde. ठीक है, whereas IUPAC name preference will be given to aldehydic portion, so the numbering will be done from this position 1 2. तो IUPAC name will be 2 hydroxy. This whole position, this whole portion will be named as बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कह सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या नेम दे सकते हैं, बेंजल्डिहाइड. ठीक है, इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द एलिफैटिक पार्ट, so this will be side chain substitution. The above examples are of nuclear substitution, but this is side chain substitution, so preference will be given to the side chain because the functional group present in side chain. So 1 2.
नेम विल बी क्या हो जाएगा इसका, दिस विल बी द साइड ब्रांच, किस पोजीशन पे, 2 फिनाइल इथेनल। कॉमन नेम सिस्टम से इसका नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। This part is acetaldehyde and this part is phenyl. Next, in this case the numbering will be done from this carbon, this position, because the functional group is present in aliphatic part. ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, तो 3 phenyl propane 1 al, ठीक है, this will be IUPAC nomenclature, whereas in the common name system the locants are decided by alpha beta gamma. So C double bond O functional group is this, ठीक है, इसका जो adjacent carbon है that is this, तो this will be referred as alpha, this will be as beta, तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा फिनाइल, चेन का नाम आपका क्या हो गया, एलिफैटिक प्रोपेनल डिहाइड. Next IUPAC nomenclature will be in ketones. First COCH, numbering will be done from this position 1 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा IUPAC nomenclature में 1 फिनाइल इथनोन, इथनोन, ठीक है. नेक्स्ट इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस methyl treated as a side branch, this is also a side branch, and the main functional group is C double bond O which is written as ketone. तो alphabetical order के according क्या हो जाएगा, methyl phenyl ketone, ठीक है. This is also named as in common name system acetophenone. This part is acetyl part, ठीक है, in which the ketone group is present, so aceto, और this part क्या हो जाएगा, phenone, ठीक है, ठीक है. So the functional group is present in the aliphatic portion, so the numbering will be 1 2 3. IUPAC nomenclature 1 phenyl propane 1 on, ठीक है. कॉमन नेम सिस्टम अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस इज इथाइल पार्ट, दिस इज फिनाइल पार्ट, दिस इज कीटोन पार्ट, ठीक है. तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इथाइल फिनाइल कीटोन. सेकेंड कॉमन नेम विल बी प्रोपियोफिनोन, ठीक है, दिस इज प्रोपाइल पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी फिनोन पार्ट, ठीक है. तो ये हो गया प्रोपियोफिनोन. नेक्स्ट देख लीजिए, इफ 2 बेंजीन रिंग्स आर अटैच्ड, ठीक है, देन द कॉमन नेम विल बी डाईफिनाइल कीटोन, वेयर एज IUPAC नेम विल बी क्या हो जाएगा आपका IUPAC नेम यहाँ पे डाईफिनाइल मिथनोन. Next IUPAC nomenclature in nitro compounds, example, ठीक है, NO2 group, this is NO2 group, ठीक है, it is named as nitrobenzene. If 2 NO2 groups are present, ठीक है, दिस इज नेम्ड एज मेटा, दिस इज मेटा पोजिशन 1 2 3, दो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, मेटा डाइजीन, ठीक है. तो मेटा पोजीशन ये हो जाएगी आपकी, यही आपका IUPAC नेम में भी यूज होगा, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है. नेक्स्ट, इफ 3 NO2 ग्रुप्स आर अटैच्ड विद वन अदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्कोहल, दिस इज नेम्ड एज पिक्रिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है. IUPAC नेम विल बी, द मेन फंक्शनल ग्रुप इज, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, सो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजिशन 1 2 3 4 5 6. सो द नेम IUPAC नेम विल बी 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस पोर्शन इज फिनॉल.
अमीन्स, ठीक है। तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ एराइल अमीन, सेकेंड इज़ एरलकाइल अमीन। एराइल अमीन का मतलब ये हो गया व्हेन सब्सटीट्यूएंट और व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो देयर विल बी न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन, वेयर एज एरलकाइल मीन्स व्हेन देयर इज साइड चेन सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन में हम उसको एराइल अमीन्स बोलते हैं, साइड चेन में उसे हम एरलकाइल अमीन बोलते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। This is named as aniline, common name है इसका. This is common name aniline, whereas IUPAC name will be benzamine. ठीक है, benzamine. Next. ठीक है, in this case there is amine group present and one alkyl group present. Preference will be given to the amine 1, 2, 3, 4. So common name will be given as para-toluidine. पैराटोल्यूडीन, ठीक है। आपको पता है ये जो यहाँ से ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोल्यून का कर रहा है। और ये वाला होल पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनिलीन को कर रहा है। तो दोनों का जो मिक्स है, पैरा पोजीशन पे दोनों हैं एक दूसरे के, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? पैराटोल्यूडीन, ठीक है। IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल बेंजामाइन, ठीक है। और इसका नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम से अगर हम इसको करें, और मिथाइल एनिलीन, दिस पोर्शन इज नेम्ड एज एनिलीन, ठीक है। और किस पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है आपका? पैरा पोजीशन पे, तो पैरा मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट इज एरलकाइल, इन दिस द सब्स्टिट्यूशन इज अकर ऑन साइड चेन, ठीक है। तो देख लीजिए CH2NH2, ठीक है। सो इन दिस विल बी द वर्ड रूट because the preference will be given to this carbon, aliphatic carbon, because the functional group is attached to aliphatic portion. So this will be treated as side branch. तो क्या हो जाएगा आपका? phenyl methanamine. This is IUPAC system. कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कहेंगे? दिस होल पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड एज बेंजाइल। तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम? बेंजाइल अमीन। ठीक है। इन दिस केस द सब्स्टिट्यूशन इज डन ऑन एलिफैटिक पोजिशन, सो द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजिशन 1, 2. तो IUPAC नेम विल बी 2 फिनाइल एथेनामाइन, ठीक है। कॉमन नेम विल बी इन द कॉमन नेम सिस्टम वेयर द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन इज रिफर्ड एज अल्फा एंड द सेकेंड कार्बन विल बी नेम्ड एज बीटा, ठीक है। सो इन द कॉमन नेम सिस्टम लोकेंट्स आर डिसाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, सो द नेम विल बी बीटा फिनाइल, क्या हो जाएगा? एथेनामाइन, या हम इसको क्या कह सकते हैं? इथाइल अमीन, ठीक है। दिस नॉमेनक्लेचर विल बी इन कार्बोक्सिलिक एसिड. एग्जाम्पल, दिस इज benzoic acid. It is also named as benzene carboxylic acid, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम था उसको हमने कैसे दिया? ऑर्थोटोल्विक एसिड, ठीक है। और क्या हो सकता है? ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड. IUPAC नेम विल बी, IUPAC नेम देख लीजिए क्या हो जाएगा? इन द IUPAC नेम लोकेंट इज डिसाइडेड बाय द न्यूमरल्स, दैट इज प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. तो 1, 2, तो क्या हो गया आपका? 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट,
There is the other functional group is hydroxyl group. This is alcoholic functional group. Preference will be given to carboxylic acid. So the numbering will be done from 1 2. ठीक है, तो IUPAC name will be 2 hydroxy benzoic acid या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, और इसी का जो कॉमन नेम है वो है सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड. नेक्स्ट, ठीक है, इन दिस द अमीन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कार्बोक्सिलिक, सो द पोजीशन विल बी 1 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 अमीनो बेंजोइक एसिड. और कॉमन नेम है इसका एंथ्रालिक एसिड. दिस इज द कॉमन नेम. और कैसे दे सकते हैं, ऑर्थो अमीनो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड. ठीक है, ये हो गया. यहाँ पे भी आपका कॉमन नेम क्या हो सकता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, सैलिसिलिक एसिड भी है, ये भी है और ये भी है. ठीक है, नेक्स्ट, if there are 2 carboxylic acid present in the benzene ring, then the common name will be written as phthalic acid. ठीक है, when the position is 1 2. ठीक है, IUPAC name will be benzene 1,2 dicarboxylic acid. ठीक है, when the position is 1/3. ठीक है, when 1 2 position, then the common name will be phthalic acid. When 1/3 position will be named as isophthalic acid. This will be the common name, isophthalic acid, when the position is 1 3. ठीक है, कॉमन नेम ये हो गया आपका. IUPAC नेम देख लीजिए क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक acid. ठीक है, when the position is 1 4, COOH, the common name will be named as terephthalate acid. ठीक है, IUPAC name will be benzene 1,4 dicarboxylic acid. Next IUPAC nomenclature will be in acid derivative. Acid derivative like acid chlorides, acid amides, anhydrides, esters. ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे होगा. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उनके IUPAC और कॉमन नेम सिस्टम देख लेते हैं. फर्स्ट इज, दिस इज नेम्ड एज बेंजोयल क्लोराइड. ठीक है, वाई बेंजोइल क्लोराइड, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद दिस बेंजीन रिंग विच इज रिप्रेजेंटेड एज बेंजो, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट विद दिस कार्बन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड. IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड. ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन हो गया, ये कार्बोनिल पोर्शन, क्लोराइड. नेक्स्ट देखिए, दिस इज आपका क्या हो जाएगा, बेंजामाइड. दिस इज अमाइड ग्रुप. ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेंजामाइड. इन दिस एग्जाम्पल, दिस इज एस्टर ग्रुप. ठीक है, मिथाइल इज अटैच्ड विद द सिंगल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन. ठीक है, द एल्काइल सिस्टम और एराइल सिस्टम विच इज अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रिफिक्स, सो इट विल बी रिटन बिफोर द वर्ड रूट. तो ये आपका क्या हो गया, मिथाइल, and the part which is attached to C double bond O will be represented as word root, और इसको फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखेंगे O8 फॉर्म में. तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोएट. ठीक है, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज बेंजो. नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस मिथाइल इज अटैच्ड टू C double bond O, नॉट सिंगल बॉन्ड. ठीक है, वेयर एज फिनाइल इज अटैच्ड विद द सिंगल बॉन्ड, सो इट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज साइड सब्सटीट्यूएंट. सो द नेम विल बी फिनाइल. दिस इज इथनोएट. कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम विल बी फिनाइल
एसीटेट, ठीक है। वाले में देख लीजिए, यहाँ पे आपका एक है आपका फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O से है और एक सिंगल बॉन्ड से है, ठीक है। तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज क्या हो जाएगा, फिनाइल, एक ये हो गया, दूसरा बेंजोएट। C डबल बॉन्ड O पार्ट इज अटैच्ड विद द CH3, ठीक है। तो ये CH3 के साथ अटैच है। वहीं पे जो आपका फिनाइल पार्ट है दैट इज अटैच टू द नाइट्रोजन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, सो इट विल बी रिटन बिफोर द वर्ड रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपका फिनाइल, किस पोजीशन पे, एन फिनाइल, ठीक है। और दिस नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए आपके कितने, 1 2 एथेनामाइड्स फिनाइल, एन फिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज रिप्रेजेंटेड, 2 कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एट एसिटा, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटामाइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, 1 phenyl group is attached to C double bond O and 1 is attached to nitrogen, so this will be treated as side substituent। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए क्या हो गया, N phenyl, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बेंजामाइड, वाई बेंजामाइड, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग विच इज हैविंग नो हाइड्रोजन विच इज रिप्रेजेंटेड एज बेंजो, ठीक है। तो बेंजामाइड। नेक्स्ट आपका देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो एल्काइल सिस्टम है दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज साइड सब्सटीट्यूएंट, वेयर एज दिस विल बी ट्रीटेड इन द मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है। तो क्या हो गया, पहले कौन आएगा, मिथाइल, ठीक है, दिस इज बेंजा, you know that this is anhydride part, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, एंड दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड एज एसिड पार्ट, ठीक है। तो आपका ये देखिए सिमिलर हैं दोनों, जब ये सिमिलर हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इनके कॉमन नेम क्या हो जाएंगे, देखिए IUPAC नेम आपने किए थे, IUPAC नेम इसका देख लीजिए क्या था, एन फिनाइल बेंजामाइड, ठीक है। तो इसको हम और भी क्या कह सकते, ज़ानीलाइड, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो ऐसे देंगे। और इस वाले का जिसका है एन फिनाइल एसिटामाइड, इसको हम कहते हैं कॉमन नेम में एसीटिनलाइड, ठीक है। कभी कभी कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। ये आपका जो है एन फिनाइल एसिटामाइड को हम एसिटिनलाइड भी कहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसे बेंजीनलाइड भी कहते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर विल बी इन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। दिस इज नेम्ड एज 1 3 पोजीशन 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट देख लीजिए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका टॉलिन है, ठीक है, टॉलिन है और किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, पैरा टॉलिन, ठीक है। और किस पोजीशन पे, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि जो आपका सल्फोनिक एसिड है वो इस टॉलुइन के पैरा पोजीशन पे है, इसलिए पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या हो जाए, 4 टॉलुइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए साइनाइड, आइसोसाइनाइड में नेमिंग कैसी हो जाएगी, कॉमन नेम में बेंजीन साइनाइड, ठीक है। दूसरा IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो ये बेंजीन साइनाइड एक कॉमन नेम हो गया, दिस इज IUPAC नेम। दूसरा कॉमन नेम देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट क्या है, बेंजो, ये वाला पार्ट बेंजो है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। तो 2 कॉमन नेम हो गए इसके। यहाँ पे देख लीजिए हम इसको मेन ब्रांच की तरह भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो कॉमन नेम सिस्टम में अगर हमने CH2 को इसके साथ ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजाइल, और ये पार्ट हो जाएगा साइनाइड,
ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा IUPAC नेम में क्या हो जाएगा आपका, 1-2 पोजीशन पे 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आपका ये वाले, इस केस में क्या होगा, दिस इज आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड, ये कॉमन नेम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, बेंजीन कार्बिलामाइन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज बेंजीन, this part is diazonium and triple bond N, this is treated as diazonium and this is chloride। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम chloride। Now next is IUPAC nomenclature in polyfunctional aromatic compound। It means when there are more than one functional group is present। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट को देखिए, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑर्डर, वेयर एज NO2 इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए ये, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजीशन बिकॉज दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, वेयर एज अमीन इज नॉट दैट मच इन प्रेफरेंस ऑर्डर इन कंपेरिजन टू एल्कोहल, सो द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2, तो 2 अमीनो phenol, this is whole portion will be named as phenol। Next, in this is ketonic group, this is cyanide group। Cyanide group is given more importance in comparison to ketonic group, so this will be treated as side branch, so the numbering will be done from this position 1 2 3। common name इसका क्या हो जाएगा, 3 acetyl, this is acetyl part, दिस इज बेंजीन पार्ट। बेंजीन से अगर एक कार्बन आपका एडेड है तो उस कार्बन में अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इट विल बी नेम्ड एज बेंजो, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, वहीं पे इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो, दिस डबल बॉन्ड O is represented as oxo which is in this part oxoethyl बेंजीन। साइनाइड पोर्शन को हम कैसे रखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन दिस केस द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल, दैट इज OH, सो द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2 3 4 ऑन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या आएगा, आइडो, तो क्या हो जाएगा आपका 4 आइडो 2 methyl, this is phenol। The numbering will be done from the according to the alphabetical order preference। ठीक है, तो alphabetical order के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको मिलेगी, ब्रोमो को मिलेगी, तो नंबरिंग उधर ही से होगी, तो क्या हो जाएगी 1 2 3। तो ये क्या हो गया आपका, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। नेक्स्ट, these are also side substituent which are never treated as principal functional group। तो according to the alphabetical order preference numbering will be given 1 to which substituent, first, that is chloro। ठीक है, क्योंकि इसका alphabetical order के according इसकी preference क्या है, ज़्यादा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेमिंग अगर हम करेंगे 1 क्लोरो, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट, in this also there are only substituent present, no functional group according to the alphabetical order। पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो नंबरिंग will be done from ब्रोमो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 2,6 डाई क्लोरो बेंजीन।
जीन, ठीक है। इन दिस केस द साइड सब्स्टिट्यूएंट विल बी नाइट्रो एंड क्लोरो, द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मिथाइल, ठीक है। सो द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम मिथाइल 1 2 3 4, ठीक है। दिस होल पोर्शन, ठीक है, दिस होल पोर्शन इज रिफर्ड इन द कॉमन नेम सिस्टम एज टोलुवीन, ठीक है। तो हम इसको कैसे नेम कर सकते हैं, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टोलुवीन, दिस होल पोर्शन is named as anisole, ठीक है। this whole portion is named as anisole just like this portion is referred as toluene, ठीक है। तो ये anisole है, तो साइड ब्रांचेस आपकी ये हो गई। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन दिस केस विच विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस, दिस OH विल बी गेटिंग मोर प्रेफरेंस बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सो इट विल बी नेम्ड एज, दिस होल पोर्शन विल बी नेम्ड एज फिनॉल, ठीक है। तो ये फिनॉल है, तो आपका ये देख लीजिए, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजिशन 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल, या हम इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पे, फिनॉल। नेक्स्ट इस वाले केस में देख लीजिए, इन दिस द फंक्शनल ग्रुप इज अमीन, ठीक है। सो दीज आर ट्रीटेड एज साइड ब्रांच, सो द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। सो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल बी फॉलोड, पहले कौन आ जाएगा 4 इथाइल, नेक्स्ट आपका कौन आ जाएगा 2 मिथाइल, ये क्या हो गया आपका होल पोर्शन एनिलीन। In this case, more preference is given to this aliphatic portion. Why to the aliphatic portion? Because the substitutions occur on this aliphatic part. 2 bromine are attached to this aliphatic part, not at the nuclear position of the benzene ring. So importance will be given to this aliphatic portion. So this benzene ring will be treated as a side branch. So what will be the numbering? This will given 1 2 3 4 5 be 1 फिनाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ जाएंगे ब्रोमो, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 2,3 डाई ब्रोमो, ठीक है, डाई ब्रोमो 1 फिनाइल, एलिफैटिक चेन का नाम क्या है देखिए पेंटेन, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, सो द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन की एलिफैटिक चेन है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज साइड ब्रांच, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ साइड ब्रांच OH, ठीक है, बिकॉज द प्रेफरेंस इज गिवन टू एल्डिहाइड, सो द नेम विल बी अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल, चेन का नाम ब्यूटेनल,